نیوز کے ساتھ میں ہوں فیضان بٹ اور میں ہوں ماہا اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آغاز میں ہی ہم بات کریں گے موسم کی۔ گرمی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری ہے، مانسون بارشوں کے سلسلے میں آج سے آغاز ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، سندھ کے ساحلی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے۔ اسلام آباد میں رات کے وقت آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، سرگودھا، فیصل آباد، بہاول نگر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ خضدار، قلات، بارکھان، دسبیلا، تربت میں آندھی گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی امید ہے۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے یا نہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج پھر ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے دلائل دیے تھے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے حلف کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ حمزہ شہباز کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ جب تک نہ کہے فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ تخت پنجاب کا مستقبل کیا؟ لاہور ہائی کورٹ میں بڑی سماعت۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے یا نہیں؟ فیصلہ کل آنے کا امکان۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ تحریک انصاف کے وکیل نے دلائل دیے کہ حمزہ شہباز کا حلف غیر قانونی تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے حلف کو کالعدم ہونا چاہیے۔ جسٹس صداقت علی خان نے دوران سماعت استفسار کیا، صدر سے متعلق جو ریمارکس سنگل بینچ نے دیے اس پر کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی کے وکیل نے جواب دیا، صدر اور گورنر کے خلاف سنگل بینچ کے ریمارکس کالعدم ہونے چاہیے۔ جسٹس شاہد جمیل نے ریمارکس دیے، دلائل دیں کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے ہوگا یا نہیں؟ حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا، سپریم کورٹ جب تک نہ کہے فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ انتخاب چیلنج ہی نہیں ہوا۔ کیس کی سماعت کل دوپہر 12:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ عمران خان کا ایک اور توشہ خانہ سکینڈل سامنے آ گیا۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے مزید 3 گھڑیاں فروخت کیے جانے کا انکشاف۔ نیوز کے پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں اینکر طلعت حسین ثبوت سامنے لے آئے۔ عمران خان نے اپنی حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قانون میں ترامیم کی اور تحفے بیچ کر کروڑوں روپے کما لیے۔ مشرق وسطیٰ اور خلیجی ملک کے شاہی خاندان سے تحفے میں ملنے والی تینوں قیمتی گھڑیوں کی مالیت 15 کروڑ 40 لاکھ روپے تھی۔ عمران خان نے یہ گھڑیاں اسلام آباد کے واچ ڈیلر کو فروخت کیں، 20% قومی خزانے میں جمع کروایا اور کروڑوں روپے کما لیے۔ عمران خان کا ایک اور توشہ خانہ سکینڈل، مزید 3 گھڑیاں فروخت کیے جانے کا انکشاف۔ اپنی حکومت اپنا قانون۔ عمران خان نے پہلے قانون میں ترامیم کی، پھر ان قوانین کا فائدہ اٹھا کر گھڑیوں کی قیمت کا تخمینہ اصل سے کم لگوایا اور مال بنایا۔ نیوز کے پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں سینئر اینکر طلعت حسین ثبوت سامنے لے آئے۔ عمران خان نے توشہ خانے سے گھڑیاں اپنے وسائل سے نہیں خریدی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ پہلے تینوں گھڑیاں فروخت کی اور اس کے بعد 20% سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا۔ مشرق وسطیٰ کے معزز کی طرف سے ایک گھڑی کی جو قیمت ایویلیویٹ ہوئی تھی وہ 101 ملین روپے کی تھی۔ قیمت کے 20% کے طور پر 20 ملین سرکاری خزانے میں جمع کرائے اور گھڑی کو فروخت کر دیا۔ مجموعی طور پر 31 ملین کا منافع کمایا۔ رپورٹس کے مطابق قطر اور سعودی خاندان سے تحفے میں ملنے والی تینوں قیمتی گھڑیوں کی مالیت 15 کروڑ 40 لاکھ روپے تھی۔ عمران خان نے یہ گھڑیاں اسلام آباد کے واچ ڈیلر کو فروخت کی، بعد میں گھڑیوں کی فروخت سے ملنے والے پیسوں میں سے 20% قومی خزانے میں جمع کرا دیا۔ سینئر صحافی قاسم عباسی کے مطابق عمران خان نے ان 3 نایاب گھڑیوں سے کروڑوں روپے کمائے۔ اس میں 2 انلیگیلٹیز ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے خان صاحب، ان کو جب یہ 3 گھڑیاں ملی تو انہوں نے یہ اپنے پاس ہی رکھی اور توشہ خانہ میں ڈپازٹ نہیں کرائی۔ دستیاب دستاویزات اور فروخت کی رسیدوں کے مطابق بظاہر یہ تحائف توشہ خانہ میں کبھی جمع نہیں ہوئے۔ 22 جنوری 2019 کو پہلی گھڑی فروخت کی گئی۔ گھڑی کی سرکاری قیمت 10 کروڑ 10 لاکھ روپے بتائی گئی۔ عمران خان نے اسے آدھی قیمت پر 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں فروخت کیا اور 2 کروڑ روپے سرکاری خزانے میں جمع کرائے اور 3 کروڑ 10 لاکھ روپے کا منافع کمایا۔ نومبر 2018 میں دوسری گھڑی کی قیمت 38 لاکھ روپے بتا کر 52 لاکھ روپے میں فروخت کی گئی۔
सरकारी खजाने में उसका 7,54,000 रुपए जमा कराया गया। तीसरी घड़ी की मालियत 15 लाख रुपए बताकर 18 लाख रुपए में फरोख्त की गई। साबिक वजीर आजम ने इसके 2,94,000 रुपए अदा किए। इमरान खान बताएं, तोशाखाना से कितना माल बनाया, कितने कीमती तोहफे तोशाखाने से लिए गए और कितने में बेचे। कप्तान पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। हुकूमत का तोशाखाना केस में नाअहली रेफरेंस दायर करने का फैसला हुआ है। वजारत कानून ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। स्पीकर कौमी असेंबली को भिजवाया जाएगा। सियासत में माइनस इमरान खान के फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया गया। तोशाखाना का माल इधर उधर, पीटीआई के कप्तान की मुश्किलात पड़ने लगी। तोशाखाना केस को बुनियाद बनाकर नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। वजारत कानून ने रेफरेंस तैयार कर लिया है। वजारत कानून की जानिब से रेफरेंस स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ को भिजवाया जाएगा, जिसमें तोशाखाना से लिए गए तहाइफ को छुपाने का जवाब बयान किया जाएगा। स्पीकर ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, जिसके बाद कार्रवाई का अमल शुरू होगा। इमरान खान अपने इस्तीफे की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश नहीं हुए, न ही उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है। इसीलिए वजारत कानून नाअहली का रेफरेंस स्पीकर के जरिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का जुलाई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान वापसी का ऐलान। कहते हैं पासपोर्ट मिल चुका, डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है। वतन वापसी का फैसला नवाज शरीफ के कहने पर किया। शहबाज शरीफ की रजामंदी भी शामिल है। पाकिस्तान वापसी के लिए किसी लीगी रहनुमा की इजाज़त नहीं चाहिए। एक बयान में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। उनके खिलाफ एक ही केस है जो झूठ पर मबनी है। कब तक वो मुतवक्किया, क्योंकि कुछ डेटें दी जा रही हैं, लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके डॉक्टर से भी मामलात है, दीगर भी है, तो कब तक एक्सपेक्ट करें कि मेरे 10-12 रोज जो मेरी मजीद जो मेडिकल है, और उसके साथ वकला जो हैं, क्योंकि आजकल समर वेकेशन शुरू हो चुकी है, आगे ईद की छुट्टियां भी हैं, तो मुझे जो बताया गया वकीलों के जरिए जो वकला हैं, उन्होंने कहा कि आप जो माइंड में रखे वो तीसरे और चौथे हफ्ते जुलाई की, एंड ऑफ जुलाई कह लें, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई का, तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ने चाहा तो अगर एवरीथिंग गोज। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है, माने हुए करप्ट लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, आटा सब महंगा कर दिया। उन्होंने आते ही करप्शन केस और नैब को खत्म कर दिया। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और कहा गया कि तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन 2 माह में हुई। गद्दारों ने अमेरिका से मिलकर मुंतखब हुकूमत को साजिश से खत्म किया। 2 जुलाई को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में तारीखी जलसा करेंगे। जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। अभी जगह डीजल महंगा तो ये भी और महंगा होगा, बिजली और महंगी होगी, पेट्रोल और महंगा होगा, गैस और महंगी होगी। पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आते साथ ही की। आते साथ ही इन्होंने सारे अपने करप्शन के केसेस खत्म किए, नैब को खत्म किया। मुंतखब की हुई हुकूमत साजिश के जरिए अमेरिकनों के साथ मिलकर गिराई। हम 2 तारीख को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के अंदर साबित करेंगे कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। इमरान खान चाहते हैं इदारे न्यूट्रल ना रहें। उन्हें पता है इदारे न्यूट्रल रहे तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। वो चाहते हैं कौमी इदारे टाइगर फोर्स की तरह काम करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं इमरान खान इदारों पर तनकीद करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी पर मुखालिफिन परेशान हैं। बेहतर होता कि लोकल बॉडीज़ का मामला सिंध असम्बली में उठाया जाता। खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसका लोकल बॉडीज का जिक्र होता आ रहा है। मुनासिब ये होता कि सिंध असेंबली में ये आवाज उठाया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिद्दोजहद किया है वो आज से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। दानली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है।
सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस के दौरान मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन समेत हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी सरापा एहतजाज हैं। लाड़काना में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान का SSP ऑफिस के सामने धरना, तहरीक इंसाफ का मामले पर अदालत से रुजू करने समेत भरपूर एहतजाज का भी ऐलान। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़ुबान ने कहा कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले में भी शिकस्त देगी। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला, सूबाई हुकूमत के खिलाफ धांधली के इल्जामात का सिलसिला जारी। अपोजिशन जमातों समेत हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी सरापा एहतजाज। लाड़काना में JUI के कारकुनों का SSP ऑफिस के सामने धरना, मुजाहिरीन की सिंध हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मोहब्बत अली खोड़ो ने कहा, सिंध में किसी सूरत पुलिस गर्दी कबूल नहीं। PTI सखर के रहनुमाओं का मामले पर अदालत से रुजू करने का ऐलान। रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूं कि आप इन चीजों में एक्शन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अच्छे माध्यम से ये UC जीती है। कहीं भी कोई, पूरे सखर में कहीं भी कोई आपको एक एविडेंस नहीं मिला होगा जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई धांधली की हो। हर जगह पे हमें विक्टिमाइज किया गया। उधर हाला में सूबाई वजीर मखदूम महबूब ज़मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पीपल्स पार्टी पहले मरहले की तरह बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी भरपूर कामयाबी समेटेगी। यहाँ पर कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। याद रहे, हमें इन सीटों से उन सीटों पर जाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। कौमी असम्बली के इजलास में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एहतजाज, वॉकआउट की धमकी। साबिर कायम खानी ने कहा, हैदराबाद का रेलवे निज़ाम तबाह हो गया, सड़कें तबाह हो गईं, मगर यहाँ वज़ीर तक जवाब देने को मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सरदार अयाज सादिक ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वॉकआउट से रोक दिया। ऐवान की पिछली नशिस्तों पर मुज़ाकरात में MQM को मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवा दी। मुझे अपने हलके की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है। किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले, इसके ऊपर हम थू करते हैं। यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीजें नहीं है कि जो हमारी जरूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते हैं। 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, एक और बात, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम। ये समझते नहीं है जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। लानत भेजते हैं। थैंक यू, आपका पॉइंट आगे। थैंक यू। IMF की तमाम अहम शराइत तस्लीम कर ली गई। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके को दिया गया रिलीफ वापस ले लिया है। 50,000 से 1 लाख माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी 50 रुपए फी लीटर लेवी लगाने की मंजूरी है। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2022-23 की शिकवार मंजूरी दे दी। मोबाइल फोन्स भी मजीद महंगे हो गए। कौमी असम्बली में गुज़श्ता माली साल 2020-21 के लिए 4 खरब 50 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद के ज़िम्मी मुतालबात ज़र भी मंजूर किए गए हैं। बजट में तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ खत्म। माहाना 50,000 रुपए से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% की शरह से टैक्स आयद। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की मराद में इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दे दी। वजीर मुमलिकत आयशा गोस पाशा ने फाइनेंस बिल पेश किया। असम्बली ने वफाकी बजट की भी कसरत राय से मंजूरी दे दी। तलीमी अखराजात की अदायगियों पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 0 है। 50 रुपए फी लीटर लेवी यकमुश्त आयद नहीं की जाएगी। इस वक्त तो लेवी 0 है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है, कोई ख्याल है। फाइनेंस बिल और बजट की मंजूरी के बाद रामदी मोबाइल फोन्स मजीद महंगे हो गए। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद
30 करोड़ रुपए से जायद सालाना आमदन वाले 13 शोबाजात पर 10% सुपर टैक्स आयद। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, फर्टिलाइजर, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनरिंग, फार्मास्यूटिकल, शुगर, टेक्सटाइल और बैंकिंग सेक्टर पर 30 करोड़ से जायद आमदन पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। हुकूमत ने 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों से बजट में दिया गया रिलीफ वापस ले लिया है। फाइनेंस बिल के तहत अब तनख्वाहदार तबके को कितना टैक्स देना पड़ेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स शरह से मुतालिक तरामीम मंजूर। नई तरामीम के तहत माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। माहाना 50,000 रुपए से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को 2.5% की शरह से टैक्स देना होगा। माहाना 1 से 2 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 15,000 रुपए फिक्स सालाना टैक्स, जबकि 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% की शरह से माहाना टैक्स आयद होगा। माहाना 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 1,65,000 सालाना, जबकि लाख रुपए से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स आयद होगा। माहाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 4,05,000 रुपए सालाना, जबकि 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स आयद होगा। माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 10 लाख रुपए सालाना और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। माहाना 10 लाख रुपए से जायद माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 29 लाख रुपए सालाना, जबकि 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स आयद होगा। तो बिजली की लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू हो चुका है। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत कई इलाकों में लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजाब बना दिया है। कराची में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई हो गया। कहते हैं बिजली है, ना गैस है और ना ही पानी। हर तरफ एक ही दुहाई, बिजली गई फिर नहीं आई। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों को बेहाल कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली 1 घंटा आती है और 2 घंटे गायब। पेशावर के शहरी कहते हैं दिन का सुकून है ना रात का चैन। हुकूमत ने बेहिसी की इंतहा कर दी। कराची में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। कहते हैं बिजली है ना गैस और ना ही पानी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत का लोड शेडिंग का नोटिस वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख का के इलेक्ट्रिक के ऑडिट का इंदिया। कहा कि इलेक्ट्रिक ने जल्द शहर में लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर होने की यकीन दहानी कराई है। कराची इलेक्ट्रिक ने कमिटमेंट की है कि जी हम 24 घंटे के अंदर सूरत हाल में बेहतरी ले आएंगे और 24 घंटे के अंदर हम सूरत हाल यहाँ बेहतर कर देंगे और इकदाम उठाएंगे। कुछ इकदाम सिंध गवर्नमेंट ने उठाने हैं, वो हम अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि फौरी तौर पे उसको हम अपने हाथ में लें। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में भी लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। पानी की किल्लत ने मसला मजीद संगीन बना दिया। बड़े शहरों के अलावा कस्बों और देहात में 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। लोड शेडिंग के अजाब ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। शहरी कई घंटों की लोड शेडिंग से सख्त अजियत से दो चार हैं। शहरी कहते हैं बिजली दे नहीं रहे तो हुकूमत छोड़ दो। हुकूमत को चाहिए कि गर्मियों में लोड शेडिंग ना हो और हमारे बच्चे घर में छोटे छोटे लोड शेडिंग की वजह से बहुत मसला होता है घर में। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 1 घंटा बिजली होती है, 2 घंटा नहीं होती, कुछ पता नहीं चलता। ना रात को नींद पूरी होती है, ना दिन में नींद पूरी होती है। बंदा परेशान होकर बाहर बैठते हैं। लाइट हर वक्त जाती ही रहती है, सुबह भी जाती है, दोपहर में भी जाती है, शाम में जाती है। अगर 24 घंटे में 15 मरतबा लाइट जाती है तो आप बताएं कि ये लोग कैसे गुजारा करेंगे। 17 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आधी रात को लाइट चली जाती है, तकरीबन 1 बजे 12 बजे, फिर वो फजर तक लाइट नहीं आती है। लोगों को कोई एहसास नहीं है, जब दिल करता जब लाइट बंद कर देते हैं। बिजली की वजह से हर बंदा परेशान है, मगर बिल जो है वो डबल ट्रिपल आ रहे हैं। अब इमरान खान चला गया है तो अब ये जिन की तरह लोड शेडिंग आ गई है। क्या करना क्या चाह रहे हो? शर्म तुम लोगों को नहीं आती? 542 अरब रुपए से जायद के बजट की मंजूरी और वो भी 1 घंटे से कम वक्त में। शायद आपको यकीन ना आए लेकिन बलूचिस्तान असम्बली ने ये कमाल कर दिखाया है और इतनी खती रकम की बजट की मंजूरी सिर्फ 46 मिनट में दे दी। देखिए कोयटा से ये रिपोर्ट।
بلوچستان اسمبلی کے اراکین نے آئندہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ کے حوالے سے کر دیا بالکل کمال، 542 ارب روپے سے زائد کی خطیر بجٹ کی منظوری دے دی، اور وہ بھی صرف 44 منٹ میں بغیر کسی سوال جواب کے۔ وزیر خزانہ سردار عبدالرحمان کیتران اسمبلی میں صرف مطالبات زر پیش کرنے کی رسم پوری کرتے رہے، چونکہ اپوزیشن فرینڈلی ہے اس لیے ایوان صرف منظور کے آوازے سے گونجتا رہا۔ تحریک منظور ہوئی، سالانہ مطالبہ زر نمبر 3 منظور ہوا، وزیر خزانہ سالانہ مطالبہ زر نمبر 4 کی بابت تحریک پیش۔ ملک یا دنیا کے کسی اور اسمبلی میں اتنی خطیر رقم کی بجٹ کی 1 گھنٹے سے کم وقت میں منظوری کی شاید کوئی مثال نہیں ہے۔ کیمرمین یاسین خان کے ساتھ محمد خان کاکڑ، نیو، کوئٹہ۔ خوشاب میں انتخابی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے، کارنر میٹنگز اور سیاسی رابطے بھی تیز ہو چکی ہیں۔ روٹھے ہوئوں کو منانے کا وقت آ گیا ہے، سرفراز میکن کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے ڈی سیٹ ہونے سے خالی ہونے والے نشست پر انتخابات کا مرحلہ آ گیا۔ پی پی 83 کی نشست کے لیے سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدوار اتارنے کی تیاریاں کر لی۔ نون لیگ، پی ٹی آئی، تحریک لبیک اور آزاد امیدوار انتخابی میدان میں اترنے کو تیار۔ باز صاحب کو ہم گڑے پہ مور لگا کے منتخب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک ملنسار آدمی ہے اور خوشاب شہر کی عوام کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ خوشاب کے اندر پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی یہاں سے جیتے گی۔ کارنر میٹنگز اور سیاسی رابطے تیز ہو گئے، روٹھے ہوئے ورکرز کو منانے کی کوششیں۔ میدان سج چکا ہے، سیاسی جماعتوں نے سیاسی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں پی پی 83 کے ووٹرز جیت کا صحرا کس کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ سرفراز میکن، نیو نیوز، خوشاب۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے ماحولیاتی آلودگی اور پریشر ہارن کا استعمال کرنے والی گاڑیوں کا شہری اقتدار میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی گاڑیوں کے مالکان کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اسلام آباد سے محمد اویس۔ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی گاڑیوں کے خلاف اسلام آباد ٹریفک پولیس کا بڑا فیصلہ، پریشر ہارنز کے استعمال کرنے والی گاڑیوں کا شہر اقتدار میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کسی بھی انفٹ گاڑی کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا، جبکہ سخت قانونی کارروائی کے تحت چالان ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ اسپیشل انفورسمنٹ اسکواڈ کے دستے اسلام آباد ایکسپریس وے، آئی جی پی روڈ، فیض آباد اور سری نگر ہائی وے پر تعینات ہوں گے۔ اب تک 239 پریشر ہارنز والی گاڑیوں اور 76 دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اویس، نیو نیوز، اسلام آباد۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک میں کہیں بھی ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ذی الحج بروز جمعہ 1 جولائی اور عید الاضحیٰ بروز اتوار 10 جولائی کو ہوگی۔ چاند کی رویت کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ میڈیا بریفنگ میں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے بتایا کہ ملک بھر میں کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ 1 ذوالحجہ 1443 ہجری 1 جولائی 2022 بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی، اور عید الاضحیٰ 10 جولائی 2022 بروز اتوار کو ہوگی۔ عید قربان کی آمد ہے۔ جنگ کی مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھ گئیں۔ بکرا منڈی میں ببلو نام کے بکرے کے چرچے ہیں۔ ناز اور نخرے سے پلنے والے اس بکرے کا وزن تقریباً 2 من کے قریب ہے۔ مالک کا کہنا ہے کہ بکرے کو دیسی گھی کے پیڑے کھلاتا اور دودھ پلاتا ہے۔ ہمارے نمائندے صفدر وسیم سے جانتے ہیں۔ صفدر بتائے گا کیا کھلاتا ہے بیپاری اپنے بکرے کو؟ ہاں جی بالکل، عید قربان قریب ہے اور جھنگ میں مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں سجا دی گئی ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں جھنگ کے علاقہ چون بھروانہ میں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے بکرا منڈی سجائی جاتی ہے، جہاں پر پنجاب بھر سے بیوپاری اور خریدار آتے ہیں۔ یہاں پر خرید و فروخت جو کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسا بیوپاری موجود ہے جس نے بڑے ناز و نخرے سے یہ بکرا جو ہے یہ پالا ہے، اور اس کا وہ جو ریٹ مانگ رہا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ اسے وہ موصول نہیں ہو رہا۔ ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ کیا کہنا چاہیے، اس کا نام آپ نے کیا رکھا اور کس طرح جو ہے آپ اس ریٹ کیا لگا رہے ہیں؟ اس کا نام میں نے ببلو رکھا ہوا ہے، اور اس کو میں نے بہت ناز نخرے سے پالا ہے۔ اس کو ہرینوں کا مربع، سیبوں کا مربع اور اس کو دیسی گھی کھلایا ہے۔ دودھ یہ ایک ٹائم کا 2 کلو پیتا ہے، اور اس کا میں نے 1,50,000 اس سے مانگا ہے۔
जो कि इसका मुनासिब रेट है। इसका असल रेट 1,80,2 लाख है, जो इससे मुनासिब दाम में मैं मांग रहा हूँ। अच्छा, तो ये देख लें, ये जो है ये इसने ये कहता है कि मैंने बड़े नाज़ और नखरे से इस बकरे को पाला है। इसका वज़न तकरीबन 1.5 मन के जो है करीब है। हमारे साथ यहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, आप क्या कहते हैं, आपने इसका जो है रेट लगाया, आप क्या कहते हैं कितने का होना चाहिए? ये कम अज़ कम 1 लाख रुपए का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। हम मंडी में फिरे हैं, ये बहुत ज़्यादा कीमत मांगते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस मंडी में आए व्यापारी वो अपना रोना रो रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस महंगाई के इस दौर में हमने जो है चारा महंगा होने की वजह से इन्हें पाला है, उसकी मुनासिबत से उन्हें रेट नहीं मिल रहा। जबकि जो ख़रीदार हैं वो अपना रोना रो रहे हैं कि इस दफ़ा जो है काफ़ी महंगाई है। जो पहले बकरा 50,000 रुपये का होता था, अब वो 2 लाख में उसका जो है वो दाम मांग रहे हैं। जी, मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां जारी हैं। जानवरों के फरोख्त में भी तेजी आ गई है। बहावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास में चोलिस्तानी बकरों की धूम है। सजे सजाए जानवरों को देखने के लिए बच्चे भी मंडी में आ रहे हैं, लेकिन महंगे दामों की वजह से खरीदारों और व्यापारियों में तकरार का सिलसिला भी जारी है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है मियां अब्दुल वाजिद ने। फोर्ट अब्बास में चोलिस्तानी बकरों की धूम, मवेशी मंडी सज गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी और गाहक दोनों महंगाई का रोना रो रहे हैं। 25 ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬਸ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੱਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ अच्छे पाले हुए ਅਸੀਂ। महंगाई ने ईद उल अज़हा की खुशियां फीकी कर दी हैं। लोग जानवर खरीदना चाहते हैं, लेकिन महंगाई से परेशान अवाम अभी भाव ताव कर रहे हैं। मियां अब्दुल वाजिद, नियो न्यूज़, फोर्ट अब्बास। अटक की तहसील पिंडी घेप की मवेशी मंडी गुज़श्ता बरसों की निस्बत खाली खाली दिखाई दे रही है। महंगाई की वजह से खरीदार मंडी का रुख करने से कतरा रहे हैं। व्यापारियों को भी पूरा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना पड़ता है। यासर मकसूद की रिपोर्ट देखिए। पिंडी घेप में ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडी तो सज गई, लेकिन खरीदार महदूद। महंगाई ने जानवरों की कीमत इतनी बढ़ा दी कि खरीदार रेट सुनते ही घर वापस लौट जाते हैं। इस दौर में तो बैल की जगह पे ना हमारे ज़हन में आया कि हम बकरा ही लेंगे, लेकिन अब कंडीशन लग रही है कि यहाँ से बकरा भी खरीदना मुश्किल हो गया है। सुबह से हम आए हुए हैं, हमें तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक जो कीमत है हमने अपने ज़हन में रखी थी, मुझे नहीं लगता कि हम जो है ना यहाँ से कोई चीज़ लेके जाएंगे। वो खर्च होया, सुबह ने आए हैं मंडी थे, लेकिन लाख रुपए मांगने का कोई इसना गाहक मोल नहीं भर रहा। इस साल महंगाई से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मान पड़ती जा रही हैं। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन कासिम मलिक के साथ यासिर मकसूद, नियो न्यूज़, पिंडी घेप। बाग के पहाड़ों की जाने वाली 2 रोज़ा एक्वा हाइक इख्तिताम पजीर हो गई है। मुल्क भर से 100 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। शुरका ने गंगा चोटी से सफ़र शुरू किया। अजहर नज़ीर अब्बासी। बाग के सरसब्ज पहाड़ों पर इको हाइक इख्तिताम को पहुंच गई। एल्पाइन क्लब के ज़ेरे एहतमाम हाइक में 100 से ज़ायद अफराद शरीक हुए। शुरका ने 30 किलोमीटर सफर किया और रात पहाड़ों पर गुजारी। शुरका हाइक और पहाड़ों की खूबसूरती से खूब लुत्फानंदोज हुए। दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका मैं इसको कहूँगा, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए एक जन्नत है। एल्पाइन क्लब पाकिस्तान के सदर अबू जफर सादिक का कहना है कि हाइक का मकसद कश्मीर की सयाहत को फरोग देना है। आज जो हम 30 किलोमीटर्स की हाइक कर रहे हैं, जिसके लिए MTBC ने हमें सपोर्ट किया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। और आज की इस हाइक में अक्रॉस द कंट्री जो है तकरीबन 100 के करीब जो पार्टिसिपेंट शरीक हो रहे हैं। हाइक के शुरका ने आइंदा भी ऐसे ही मौके फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ अजहर नज़ीर अब्बासी, नियो न्यूज़, बाग, आज़ाद कश्मीर। दीगर खबरों में आपको बताएं कि PTI को इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं रहा। फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं, सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात की जानिब जाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में मर्जी का अपोजिशन लीडर बनाने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए। शीरी मजारी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा चीफ इलेक्शन आइन को बदलना चाह रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि मखसूस नशिस्तों को फौरी नोटिफाई किया जाए। असद उमर बोले इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारों की जानिब से पंजाब हुकूमत को बचाने की कोशिश की जा रही है।
कोशिश ये की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, दूसरे इदारों की जानिब से भी, कि किसी न किसी तरीके से ये गैर आईनी हुकूमत जो है पंजाब में उसको बचा लिया जाए। जितने भी यहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं वो आइन के मुताबिक तो हो नहीं रहे हैं। अगर आप मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम के लिए आपको इंतखाबात की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। हमारे रिजर्व सीट्स के ऊपर जो नए MPAs हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए, और उसके बाद वज़ीर आला का नया इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन को बदलना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करा ही नहीं सकता। ये वाज़े तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया गया। कहा, चीनी रहनुमा यांग जीची का दौरा पाक चीन दोस्ती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मजहर है। इक़्तिसादी ताउन वसी पैमाने पर पाक चीन शराकत दारी की बुनियाद बन चुका। चीन की गैर मुतसलसल हिमायत मुल्क की मईशत को बैरूनी झटके से निमटने में मदद देती है। वज़ीर आज़म ने $2.3 अरब की सिंडिकेट सहूलत की तजदीद पर चीन का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बैनुल अक़वामी शराकत दारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। हम अपनी तज़वीराती शराकत दारी को बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन यांग जीची का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, ताउन और CPAC पर बातचीत की गई। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को सराहता है। चीन के साथ तस्वीराती शराकत दारी को बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। यांग जीची ने पाकिस्तान में चीनी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के साथ ताउन में मजीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। यांग जीची की क़यादत में चीनी वफ़द ने दफ्तर खारजा में वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द से मुलाकात भी की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। SSDO की ज़रिए तमाम इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्क़त के हवाले से वकालतनामा सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर सूबाई वज़ीर हसन मुर्तज़ा, MPA बुशरा अंजुम बट और उस्मा कारदार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाने का ऐलान किया। SSDO के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्क़त के हवाले से सेशन का इनेकाद। इस मौका पर सीनियर सूबाई वज़ीर हसन मुर्तज़ा ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्क़त को रोकने के लिए ज़रूरी है कि वो इसकी वजूहात को देखा और समझा जाए। समुंदर पार भी जो होता है, जो लोग जाते हैं वो जिस अंदाज से जाते हैं, हादसों का शिकार हो जाते हैं, गोली का शिकार हो जाते हैं, तो ये काफ़ी जो मसाइल हैं इनके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। MPA बुशरा अंजुम बट का कहना था, 4 साल से असम्बली में इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्क़त पर बात करती रही, लेकिन PTI की हुकूमत का कहना था कि इनके पास फंड्स नहीं हैं। PTI की हुकूमत थी तो मैं 4.25 साल असेंबली के फ्लोर पे एक ही सवाल कर रही थी कि इन बच्चों को वापस भट्टों पे जाने पे मजबूर क्यों किया गया। तो हमेशा जवाब एक ही मिलता था, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही मायूस कुन सवाल था कि जी फंड्स अवेलेबल नहीं है। उस्मा कारदार का कहना था, इस मकरू धंधे में माफिया शामिल है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता। ये पूरा नेटवर्क है, ये एक इनविजिबल क्राइम है जिसको हमने एड्रेस इस तरीके से करना है कि हमने ये पूरी गैंग है, इनको बीच में इनको तोड़ना है। इंसानी स्मगलिंग और जबरी मुशक्कत के सेशन में गरीब बट्टा मजदूरों ने शिरकत की और अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात बारे बताया। कैमरामैन फरहान के साथ हाफिज महबूब, नियो न्यूज़, लाहौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के थीसिस शो का दूसरा रोज़ आर्किटेक्ट ग्रेजुएट्स ने आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन के फाइनल ईयर थीसिस का डिस्प्ले जारी किया। थीसिस शो के दूसरे रोज़ आर्किटेक्ट डिज़ाइन के 11 थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए गए, जिसे हाज़रीन महफिल की जानिब से खूब सराहा गया। कौसे कज़ाह के रंग बिखेरते इस थीसिस शो का अहवाल रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 रैंकिंग पर मौजूद सुपीरियर यूनिवर्सिटी के थीसिस शो 2022 के शो का दूसरा रोज अहम शख्सियात और तलबा ने दूसरे दिन भी तलबा के काम को देखा। सेक्रेटरी सयाहत एहसान भुट्टा, मारूफ शायर वसी शाह बच्चों की तख्लीक काराना सलाहियतों की तारीफ किए बगैर न रह सके। बच्चों की बड़ी अच्छी असाइनमेंट्स हैं और जितना आप एग्जिबिट करेंगे, लोगों के सामने नुमाइश में लेके आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनको देखेंगे भी और अपने जो माहराना राय है वो भी कायम कर सकते हैं। तो ये खुशी की बात है कि स्टूडेंट्स का फाइनल थीसिस को सारों के सामने लेके आया जाए। एक बड़ी बात होती है कि आपकी क्लैरिटी हो कि आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और सोचने के बाद, समझने के बाद और फिर उसको आप कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए। UMT आर्किटेक्ट प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ अवान, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट प्रोफेसर अजहर मामून समेत माहिरीन आर्किटेक्ट ने नई जहतों को मुतारिफ कराने पर तलबा को सराहा। थीसिस शो के दूसरे रोज कई बच्चों के आर्ट नमूने फरोख्त हो गए। टेक्सटाइल आर्ट पर बनाया गया मलंग थीम एशिया का सबसे बड़ा पैनल 55,000 में फरोख्त हुआ। 1,65,000 थे, लेकिन अब ये एक्चुअल प्राइस थोड़े चेंज करेंगे हम इस सेंस में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उनका जो क्लाइंट है उनको इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन भी चाहिए अपने एरिया के हिसाब से, तो हम उसको कस्टमाइजेशन के बाद फाइनलाइज कर सकेंगे। तालिब इल्मों ने बाबा बुल्ले शाह के मज़ार का मॉडल बनाकर ज़ायरीन के दीगर मसाइल को अपने हुनर से उजागर किया। काम है इतना अच्छा, इतना सुपीरियर है कि लोगों को जब मैं ये देख रहा हूँ कि वो खुश हो रहे हैं सुपीरियर के काम को देख के, यहाँ के स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत की है तो एक प्लस पॉइंट जाता है। दूसरे रोज शोबा आर्किटेक्चर के तलबा और तालिबात ने 11 थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए।